Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss the novel The Pot of Gold, which is written by Plotters. So let's see what are the topics we are going to discuss here. So here is the study guide for The Pot of Gold. So first of all we'll discuss the introduction to the playwright, the Plotters. Then we'll discuss introduction to this play, The Pot of Gold. After that, there will be the list of characters, in which I have discussed the list of characters with you. Then we'll discuss the detailed summary, and in detailed summary, firstly we'll discuss the summary of the prologue, and then we'll discuss the summary of this play. Then we'll discuss the themes and symbols. So these are the topics which we are going to discuss here. So make sure to watch this video till the end so that your doubts will be cleared. Without any further delay, let's discuss about introduction to the playwright, Plotters. So guys, here is the introduction to the playwright. एंड एज अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको प्ले राइट का बैकग्राउंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हेयर वी विल डिस्कस द background of the plotters, then we'll discuss his early career, then we'll discuss rise to his success, then there will be discussion about his legacy. So his complete name was Titius Maccius Plotters, and he was a Roman playwright, but we don't know much about him. So it was believed that he was born around 254 BC in रोमन रिपब्लिक प्रेजेंट डे इटली. सो टिटियस मैकियस प्लॉटस जो है वो एक रोमन प्ले राइट है, बट हमें उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है. हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो उनका जन्म है वो 254 BC में प्रेजेंट डे इटली में होता है. So now we'll discuss his early career. So in his early years, he left the village and joined a traveling theatre group. So when he was in his young age, in his early age, he left his village and he joined a theatre group, traveling theatre group. It shows that he was already interested in theatre. And later he began to work as a stage assistant and carpenter. And after that he started working as a stage assistant and carpenter, and there his interest to theatre increased. And when he joined the Roman army, he was exposed to Greek theatre and comedy. So in his later years he joined the Roman army. तो पहले तो जब वो विलेज में रहते हैं वहां पर वो अपनी अर्ली एज में अपना गांव छोड़ देते हैं और ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं. उसके बाद वो एज अ स्टेज असिस्टेंट और स्टेज कारपेंटर वर्क करते हैं, एंड देयर हिज इंटरेस्ट टू थिएटर डेवलप्ड. उसके बाद जब वो रोमन आर्मी ज्वाइन करते हैं, एक तो उनका थिएटर में पहले से इंटरेस्ट था, और रोमन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें ग्रीक थिएटर और ग्रीक कॉमेडी के बारे में पता चलता है. तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि वो और ज्यादा उसमें इंडल्ज होना स्टार्ट कर देते हैं. सो हियर इज द राइज टू सक्सेस. His earliest plays, Addictus and Saturio, were written while he was still traveling. So while he was traveling, he wrote some plays, but he did not leave his other jobs. It means he was writing, but he was doing other jobs as well. Later, his comedies became a success, and he soon became a full-time dramatist. But बाद में जब उनके जो प्ले होते हैं, जो उनकी कॉमेडीज होती है, उन्हें सक्सेस मिलने स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो सब काम छोड़ देते हैं और एक फुल टाइम ड्रामेटिस्ट, फुल टाइम प्ले राइट बन जाते हैं. वी ऑल्सो डू द सेम समटाइम्स बिकॉज वी ऑलवेज कीप एन ऑप्शन विद अस कि हम ये वाली जॉब प्रोफाइल ले लेते हैं, बट जब तक हमें वो वाला नहीं मिलता, इट्स मीन हम पहले एक बैकअप प्लान हमेशा रखते हैं. So he chose to rework Menander's plays. Instead of just translating, he introduced local Roman colors in his plays. So जो प्लॉटर्स ने वर्क लिखे, जो उन्होंने कॉमेडीज लिखी, उसके लिए उन्होंने जो थीम चूज करी वो मिनेंडर के प्ले थे. मिनेंडर जो है उन्होंने काफी प्लेस लिख रखे थे, और प्लॉटर्स ने डिसाइड किया कि वो उन्हीं प्लेस को ट्रांसलेट करेंगे. बट उन्होंने उन प्लेस को एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करा, बल्कि जो रोमन कल्चर था, रोमन सोसाइटी थी, उसकी थीम्स को वहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा. देन if we talk about legacy, so it is believed that he wrote more than 130 plays, but we have access to only 21. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 130 प्लेस लिखे, 130 प्लेस लिखे, बट सभी जो उनके लिखे हुए प्लेस हैं वो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं. सो वी हैव एक्सेस टू ओनली 21 प्लेस. Some of his most famous works included The Pot of Gold, The Menachmi, Stickis, The Swaggering Soldier,
etc. And Plautus was highly influenced by Menander. So that's all about the introduction to the playwright. I hope it is cleared to you. Now we'll discuss the introduction to this play. So the Pot of Gold, also known as Aulularia, is a comic play by Plautus. इट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सट्रीमली माइजरली प्रोटैगनिस्ट. तो देखो, जो पोर्ट ऑफ गोल्ड है, इसको इस नेम से भी जाना जाता है और इसको लिखा है प्लॉटस ने. अब प्लॉटस की जो स्टोरी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? तो ये रिवॉल्व करती है यूक्लियो के अराउंड. अब यूक्लियो जो है वो एक बहुत ही कंजूस आदमी है, एक बहुत ही माइजर पर्सन है. एंड दिस सेटिंग इन द स्ट्रीट्स इन एथेंस नियर द हाउस ऑफ मेगाडोरस, यूक्लियो एंड श्राइन एक्सेट्रा. तो ये भी मेगाडोरस, यूक्लियो आपको समझ नहीं आएंगे बिकॉज दीज आर दी कैरेक्टर्स. तो जो हम बात करें कि ये प्ले कहाँ सेट होता है, तो ये एथेंस में सेट होता है. इसकी सेटिंग एथेंस है और मेगाडोरस के घर के आसपास, यूक्लियो के घर के आसपास इसकी सेटिंग है. It gives us an insight into the Roman life at that time, especially the position of women and the slaves. और ये प्ले हमें बताता है कि उस टाइम पर जो रोमन कल्चर था, जो रोमन सोसाइटी थी, वो कैसी थी, विमेन के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता था, स्लेव्स को कैसा ट्रीट किया जाता था, ये हमें ये प्ले पढ़कर पता लगेगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर लिस्ट. So guys, here is the list of characters and here we will see which characters are here, but it will not provide you details about the characters. So I will make a separate video about the character list in we will discuss the characters in detail. So I will provide the link of that video in the description box also at the end of this video. So first character is Lar Familiaris. तो जो पहला कैरेक्टर है वो है लार फेमिलियारिस और वो हाउस होल्ड डीटी है. मतलब हमारे भी कुछ पूर्वज होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, इसी तरीके से इनके भी कोई हाउस होल्ड डीटी है जिनका नेम है लार फेमिलियारिस. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज यूक्लियो. और नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? यूक्लियो. यूक्लियो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले एंड ही इज द फादर ऑफ फेड्रिया एंड ही इज अ माइजर पर्सन. वो फेड्रिया के फादर और वो एक नंबर के कंजूस इंसान है. अब फेड्रिया कौन है? फेड्रिया इज यूक्लियोस डॉटर एंड डिवोशन टू डीटी. इट मीन जो फेड्रिया है वो लार फेमिलियारिस को बहुत ज्यादा मानती है, उनकी प्रॉपरली पूजा करती है, वर्शिप करती है. तो लार फेमिलियारिस जो है वो उस चीज से बहुत खुश हैं. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज लाइकोनिडस. लाइकोनिडस seduced फेड्रिया एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ. तो जो लाइकोनिडस है वो फेड्रिया को सेड्यूस करता है और फेड्रिया अब प्रेग्नेंट है. इट्स मीन शी इज हैविंग लाइकोनिडस चाइल्ड. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टेफाइला, जो कि यूक्लियो की सर्वेंट है, उनके घर में काम करती है. देन यूनोमिया. यूनोमिया इज लाइकोनिडस मदर एंड मेगाडोरस सिस्टर. तो यूनोमिया जो है वो लाइकोनिडस की मदर है और इनके भाई है मेगाडोरस. सो मेगाडोरस इज आवर नेक्स्ट कैरेक्टर. सो ही इज यूनोमियाज ब्रदर, ओल्ड एंड डिजायर्स टू मैरी फेड्रिया. सो जो मेगाडोरस है वो एक मतलब एजेड पर्सन है और वो चाहते हैं फेड्रिया से शादी करना. वो फेड्रिया से क्यों शादी करना चाहते हैं वो हम समरी में देखेंगे. देन स्ट्रॉबिलस इज सर्वेंट ऑफ मेगाडोरस. नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर एंथ्रेक्स एंड कॉन्ग्रियो. बोथ ऑफ देम आर कुक्स. एंड देन स्लेव, लाइकोनिडस का स्लेव इज द नेक्स्ट कैरेक्टर. सो गाइज, इनकी डिटेल कैरेक्टर लिस्ट आप जरूर देख लेना, उसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच कैरेक्टर वी विल डिस्कस. सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज समटाइम्स देयर विल बी क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. कैरेक्टर एनालिसिस लिखने के लिए आ जाता है. सो वॉच दैट वीडियो टू. That's all about the characters. Now we'll discuss about the summary. Here is the detailed summary. तो ये पार्ट होने वाला है थोड़ा सा बड़ा और समरी आप लोग ध्यान से समझना बिकॉज आपके एग्जाम्स में जो भी चीजें आप लिखेंगे, जो भी चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो यहीं से होने वाली है. सो मेक श्योर टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन ask me in the comment box or I will provide the link of other platforms as well. You can ask me there too. So without any further delay, let's discuss the detailed summary. So इसको बहुत ध्यान से समझना. सबसे पहले ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है प्रोलोग से. सो प्रोलोग में जो प्ले स्टार्ट होता है, प्ले ओपन्स विद अ प्रोलोग गिवन बाय लार फेमिलियारिस. लार फेमिलियारिस यहाँ पर एक प्रोलोग देते हैं. ही टेल्स सम प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अबाउट द प्ले.
He also tells how his daughter worships him. तो जो लार फैमिलियारिस है वो यहाँ पर अपीयर होते हैं प्रलोग में, और वो प्ले के बारे में हमें कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स बताते हैं। वो बताते हैं कि जो यूक्लियो की बेटी है फेड्रिया, वो किस तरीके से उनकी वर्शिप करती है, और लार फैमिलियारिस उस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं। यूक्लियो फाइंड्स अ पोर्ट ऑफ गोल्ड बट डज नॉट इन्फॉर्म एनीबडी। तो लार फैमिलियारिस जो है वो यूक्लियो को कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मेरी रेगुलर वर्शिप करती है और मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ, और तुम्हारे घर में एक पोर्ट ऑफ गोल्ड छिपा हुआ है जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर छुपाया था, और मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की वर्शिप से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यूक्लियो को जो यहाँ पर ये पोर्ट ऑफ गोल्ड मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ फेड्रिया। सो यूक्लियो फाइंड्स अ पोर्ट ऑफ गोल्ड बट डज नॉट इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट इट। यूक्लियो को ये पोर्ट ऑफ गोल्ड मिल तो जाता है, वो किसी को भी इसके बारे में बताता नहीं है। इन हिज हाउस हिज डॉटर फेड्रिया एंड हिज हाउसकीपर नेम्ड स्टेफाइला लिव। तो हमें प्रोलोग में बता दिया जाता है कि यूक्लियो के घर में उसकी बेटी रहती है और उसकी हाउसकीपर स्टेफाइला रहती है। फेड्रिया इज प्रेग्नेंट as she is seduced by a young man named Lyconides during Christmas Eve. So हमें प्रलोग में ये बता दिया जाता है, I told you ना that in prologue we are introduced to preliminary facts, so it is also introduced to us that Phaedria is pregnant because she is seduced by Lyconides. So Euclid is unaware of the fact that his daughter is pregnant. सो ये सारी डिटेल्स हमें प्रोलोग में प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि हम जो ये प्ले है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं डेवलप कर लें। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोलोग। So guys, let's discuss the play summary. So the play opens with a scene. Euclid scolds his housekeeper Stephyla as he wants some privacy and some time to think about where he can hide this pot of gold. तो गाइज ये प्ले स्टार्ट किस तरीके से होता है, जो यूक्लियो वो लार फैमिलियारिस का प्रोलोग सुनकर आता है और उसे पता लगता है दैट देयर इज अ पोर्ट ऑफ गोल्ड इन हिज हाउस। सो व्हेन ही फाइंड्स दैट पोर्ट ऑफ गोल्ड ही वांट्स टू हाइड दैट इन अ प्रॉपर प्लेस जहां पर किसी को पता ना चले। तो जैसे ही वो अपने घर में एंटर करता है उसे मिलते हैं स्टेफाइला। अब स्टेफाइला तो घर में रहेगी, वो उसकी हाउस कीपर है, वो कहाँ जाएगी, बट वो आते ही घर में उसको डांटने लग जाता है। So Stephyla goes out muttering about Euclid's abusive behavior, but she is worried for Phaedria. सो जो यूक्लियो है वो डांटने लग जाता है स्टेफाइला को, और स्टेफाइला वहां से चली जाती है गुस्सा करते हुए कि यूक्लियो को तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, हर वक्त ऐसे ही बिहेव करता रहता है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बट शी इज वरिड फॉर फेड्रिया एज शी वाज प्रेग्नेंट। सो यूक्लियो अश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड देन कम्स आउटसाइड। तो यूक्लियो अंदर पूरा टाइम लेता है, प्रॉपर टाइम लेता है कि कहाँ पर उसको अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड छुपाना चाहिए, पूरा एनालाइज करता है उसको। उसके बाद वो बाहर आता है एंड आफ्टर कमिंग आउटसाइड he asked Stephyla to go inside the house and do whatever the work she was doing, कि जाओ अंदर और जो भी काम तुम कर रही थी वो कर लो। Here Euclid gives a soliloquy and tells the audience that he does not want to leave the house but he has to do so as he has urgent work to do. तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, यूक्लिड एक सोलिलिकी देता है। सोलिलिकी क्या होता है, मतलब जो पर्सन अकेले ही कुछ चीजें बोलकर सबको बताता है। सोलिलिकी के ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगी क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है। सो यूक्लिड यहाँ पर सोलिलिकी देता है और वो बताता है कि मतलब वो घर छोड़कर जाना तो नहीं चाहता क्योंकि घर में एक पॉट ऑफ गोल्ड रखा है और वो उस चीज से पूरे प्ले में ही परेशान रहेगा, आई एम टेलिंग यू। बट उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसे कुछ काम है, और वो काम क्या है अब हम देखेंगे। सो देन इन द नेक्स्ट सीन वी आर टोल्ड अबाउट मेगाडोरस, अ रिच रिस्पेक्टेबल गुड हार्टेड मिडल एजेड अनमैरिड मैन। तो यूक्लियो तो यहाँ पर परेशान होता हुआ, मतलब घर से जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसको जाना पड़ जाता है तो वो चला जाता है। ये सीन यहाँ पर खत्म हो गया। देन हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं, तो वहां पर मेगाडोरस मिलते हैं। मेगाडोरस जो है उनके बारे में हमें बताया जाता है कि वो रिच रिस्पेक्टेबल गुड हार्टेड बट मिडल एजेड मैन है जिनकी शादी नहीं हुई है। सो मेगाडोरस टॉक्स टू हिज सिस्टर यूनोमिया एंड हु वांट्स हिम टू गेट मैरिड। तो इस सीन में जो मेगाडोरस है वो अपनी सिस्टर यूनोमिया से बात कर रहे होते हैं और यूनोमिया उनसे कहती है कि भाई अब तुम शादी कर लो। देन शी वांट्स हर ब्रदर टू गेट मैरिड टू अ मिडल एजेड वुमन विद गुड डावरी। तो यहाँ पर जो यूनोमिया है वो चाहती है कि उसका भाई एक मतलब मिडिल एजेड विमेन से ही शादी कर ले जो कि बढ़िया दहेज वगैरह लेकर आए, अच्छी डाउरी लेकर आए। तो ऐसा यूनोमिया चाहती है। बट यहाँ पर मेगाडोरस का पॉइंट बिल्कुल अगेंस्ट होता है अपनी सिस्टर के। एट दिस मेगाडोरस सेज he does not want a woman with high dowries and if he would marry then he will choose Eucleo's daughter Phaedria.
तो यहाँ पर जो मेगाडोरस हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसी लेडी से शादी नहीं करना चाहता जो बहुत ज्यादा डाउरी लेकर आए, क्योंकि मेगाडोरस का ऐसा मानना है कि जो लेडी बहुत ज्यादा डाउरी लेकर आती है वो हमेशा अपने हस्बैंड को नीचा रखना चाहती है, उन्हें दबा कर रखना चाहती है, उन पर अपने हुक्म चलाती है, ऐसा मेगाडोरस फील करते हैं। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मैरी फेड्रिया, की मतलब फेड्रिया बहुत ज्यादा डाउरी भी नहीं लेकर आएगी और उन पर अपना रूल भी नहीं करेगी। सो दो मेगाडोरस इज सीनियर टू हर बाय मैनी ईयर्स। अब हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगाडोरस कितने बड़े हैं फेड्रिया से, बिकॉज मेगाडोरस के जो बहन का बेटा है लाइकनिडिस, उसका अफेयर चल रहा है फेड्रिया से। सो मेगाडोरस इज सीनियर टू हर बाय मेनी इयर्स, शी हैज एन अफेयर विद हिज नेफ्यू लाइकनिडिस। मतलब उसकी बहन के बेटे की जो गर्लफ्रेंड है उससे यहाँ पर मेगाडोरस शादी करना चाहते हैं। सो मेगाडोरस डिसाइड्स टू टॉक टू यूक्लियो, और इस बारे में जो मेगाडोरस है सोचते हैं कि मैं यूक्लियो से बात करूंगा, क्योंकि जो यूनोमिया है वो उनसे अग्री कर जाते हैं, ठीक है तुम्हारी मर्जी तुम्हारी लाइफ, बट वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसका भाई शादी कर ले। तो यहाँ पर इन दोनों का कंफ्यूजन निकल जाता है और मेगाडोरस डिसाइड करते हैं कि वो यूक्लियो से बात करेंगे इस बारे में। So disappointed Euclio returns from the donation place, and on the way Megadorus meets him and asks him about his health. So यहाँ पर जब ये डिसाइड कर लेते हैं मेगाडोरस कि मैं बात करूंगा यूक्लियो से, यूक्लियो ने रास्ते में मिल जाता है और यूक्लियो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है पोर्ट ऑफ गोल्ड को लेकर, दूसरे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो डोनेशन प्लेस से आ रहा होता है। यूक्लियो का जो अर्जेंट काम था वो था डोनेशन, एक जगह पर डोनेशन हो रही थी और यूक्लियो सोच रहा था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो वहां जाता है और उसे कुछ भी वहां नहीं मिलता है। तब तक वो वहां पहुंचता है, सब खत्म हो जाता है। तो वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिसअपॉइंटेड होता है और रास्ते में उसे मिल जाता है मेगाडोरस। तो जैसे ही मेगाडोरस से मिलता है, मेगाडोरस पूछता है हाँ भाई क्या हाल चाल है तुम्हारी, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। आपस में हम मिलते हैं किसी से तो ऐसे ही बात करते हैं। सो यूक्लियो इस चीज से बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई मेगाडोरस मेरी हेल्थ के बारे में क्यों पूछ रहा है। सो यूक्लियो becomes suspicious after this incident and goes inside the house and checks the safety of the pot of gold and comes outside and resumes the conversation. तो जैसे ही मेगाडोरस उससे पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो, तो यूक्लियो को तुरंत लगता है कि कहीं मेगाडोरस को मेरे पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में पता तो नहीं चल गया, और वो इससे बड़ा सस्पिशियस हो जाता है, उसको शक हो जाता है। तो वो पहले सीधा अपने घर में जाता है, अपने पोर्ट ऑफ गोल्ड की सेफ्टी अश्योर करता है कि वो सही जगह पर है या नहीं, एंड देन ही कम्स आउटसाइड, और उसके बाद वो मेगाडोरस से बात करना स्टार्ट करता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितना ज्यादा परेशान है इस पोर्ट ऑफ गोल्ड की वजह से। नाउ मेगाडोरस आस्क यूक्लियो फॉर हिज डॉटर। तो जब यूक्लियो यहाँ पर बाहर आता है मेगाडोरस से बात करने के लिए, अब मेगाडोरस उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। Then Megatorus tells Euclio that he intends to marry his daughter Phaedria, and Euclio thinks he is mocking him and he maybe has discovered the treasure. तो यहाँ पर जो यूक्लियो है उसे लगता है कि या तो मेगाडोरस मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि सबको पता है यूक्लियो गरीब है, तो मेगाडोरस या तो उसका मजाक उड़ा रहा है, यूक्लियो ऐसा फील करता है, या फिर कहीं उसको उसके पोर्ट ऑफ गोल्ड, उसके ट्रेजर के बारे में पता तो नहीं चल गया। देन ही हियर्स अ साउंड ऑफ अ स्पेड एंड विदाउट नोइंग द रीजन ही गोज इनसाइड द हाउस एंड अगेन कम्स बैक एंड रिज्यूम्स देयर कन्वर्सेशन। मतलब यहाँ पर अभी ये बात कर रहे थे, मेगाडोरस बताता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जिस पर यूक्लियो को लगता है कहीं से पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में पता तो नहीं चल गया, और अचानक से ही इन्हें आवाज आती है कि कहीं पर कोई खुदाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो उसे लगता है कि कोई मेरे घर में मेरा पोर्ट ऑफ गोल्ड ही तो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। तो जैसे ही वो आवाज सुनता है वो फटाफट से अपने घर में वापस जाता है और वापस दोबारा चेक करके आता है कि हाँ पोर्ट ऑफ गोल्ड ठीक है, और दोबारा से अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता है। सो यूक्लियो अग्री कर देता है कि ठीक है भाई, इफ यू वांट टू मैरी माय डॉटर आई विल अलाउ यू, बट यूक्लियो सेज दैट ही विल नॉट प्रोवाइड एनी डाउरी एज ही डज नॉट हैव इनफ मनी। यूक्लियो पहले ही मना कर देता है, मैं कोई अपनी बेटी को दहेज वहेज नहीं देने वाला शादी में, क्योंकि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो पहले ही साफ साफ मना कर देता है। So Megadorus agrees to his condition and both of them leave for the preparation of the marriage. तो Megadorus कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, मेरे को भी कोई डावरी नहीं चाहिए, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं शादी की तैयारियां करने के लिए।
So Euclid tells Staphyla that Phaedria and Megadorus are going to be married. तो यूक्लियो जाते हैं अपने घर पे और अपनी हाउस होल्ड सर्वेंट को बताते हैं कि जो फेड्रिया है और मेगाडोरस है उन दोनों की शादी होने वाली है. So Staphyla is distressed by this news because she knows Phaedria is already carrying Lyconides' child. So Megadorus does not want Euclio to spend money on the wedding. Therefore, he sends his steward Strobylus to the market with instructions to buy a lot of provisions, cooks, flute girls, and divide them into two. Send half of them to Euclio's house for the wedding preparation. मेगाडोरस चाहता है कि यूक्लियो शादी पर कोई भी पैसा खर्च ना करे क्योंकि उसे लगता है जेन्युइनली नहीं है यूक्लियो के पास पैसा, और इसीलिए जो मेगाडोरस है वो अपने स्टीवर्ड स्ट्रॉबिलस को बोलता है कि तुम मार्केट जाओ और ज्यादा सामान खरीदो. प्रोविजंस मतलब शादी में यूज होने वाला जो भी सामान वगैरह है वो खरीदो, कुक्स ले आओ और फ्लूट गर्ल्स ले आओ, और इतने ज्यादा लेकर आना कि तुम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. आधे जो होंगे उन्हें यूक्लियो के घर पर भेज देना और आधे हमारे घर रहेंगे ताकि वो शादी की सारी तैयारियां कर सके. सो स्टीवर्ड स्ट्रॉबिलस जो है वो सारी चीजें कर लेता है, सारी प्रिपरेशन कर लेता है. एंड देन कुक एंथ्रेक्स आस्क स्ट्रॉबिलस व्हाई मेगाडोरस इज पेइंग फॉर यूक्लियो's हाउस. And at this, Strobylus tells him hundreds of tales of Euclio's miserliness. तो यहाँ पर जो ये कुक हायर करके लाते हैं उनमें 2 कुक के नाम हमें बताए गए हैं स्पेसिफिकली. आई टोल्ड यू इनिशियली इन द कैरेक्टर लिस्ट, वन वाज एंथ्रेक्स एंड अदर वन वाज कॉन्ग्रियो. सो यहाँ पर जो कुक एंथ्रेक्स है वो स्ट्रॉबिलस से पूछता है कि भाई यूक्लियो की बेटी की शादी है, यूक्लियो शुड पे, व्हाई मेगाडोरस इज पेइंग फॉर दिस वेडिंग. तो इस पर जो स्ट्रॉबिलस है वो खूब सारी स्टोरीज बताने स्टार्ट कर देता है कि यूक्लियो जो है वो इतना ज्यादा कंजूस है, वो कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीजें वो एंथ्रेक्स को बताता है. सो देर इज अ फाइट बिटवीन द 2 कुक्स एंथ्रेक्स एंड कॉन्ग्रियो. अब जो ये दोनों कुक्स हैं इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है. टॉपिक क्या होता है कि यूक्लियो के घर कौन जाएगा, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी यूक्लियो के घर जाना ही नहीं चाहता. ये सब स्टोरी सुनकर कि यूक्लियो इतना ज्यादा कंजूस है, ये दोनों सोचते हैं कि भाई हम उसके घर नहीं जाएंगे. So Strobylus takes Congrio to Euclio's house and tells Staphyla that he has bought provisions, cooks and flute girls for the wedding. तो ये दोनों लड़ने लग जाते हैं. अब स्ट्रॉबिलस सोचता है भाई मैं क्या करूं. सो स्ट्रॉबिलस जो है वो कॉन्ग्रियो को बोलता है कि तुम चलो यूक्लियो के घर, और वो कॉन्ग्रियो को यूक्लियो के घर पर ले जाता है और स्टेफाइला को जाकर बताता है कि ये सामान है, ये कुक है और ये फ्लूट गर्ल्स हैं, शादी की प्रिपरेशन ये तुम्हारे यहाँ पर करेंगे. So unaware Euclio about Megadorus' plans goes to the market to buy some provisions, but he buys nothing but some flowers and a packet of incense sticks. So Euclio को ये नहीं पता होता है कि जो मेगाडोरस है वो शादी की सारी प्रिपरेशन कर रहा है. तो वो सोचता है कि ठीक है मेरी बेटी की शादी है, आई शुड ऑल्सो गो टू द मार्केट और मैं भी कुछ सामान खरीद लाता हूँ. तो जब यूक्लियो मार्केट जाता है वो चीजें खरीदना तो चाहता है, वो उनके रेट सुनता है एंड ही डिसाइडेड कि मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. वो मार्केट से सिर्फ कुछ फ्लावर्स और अगरबत्ती का पैकेट लेकर आ जाता है. मतलब वो कितना ज्यादा कंजूस है, हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसी की बेटी की शादी है एंड ही डज नॉट वांट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी. When Euclio reaches near home, he hears some noise and jumps to the conclusion that someone has stolen the pot of gold. तो यूक्लियो जब मार्केट से घर वापस आ रहा होता है, अपने घर के पास जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे कुछ आवाज आनी स्टार्ट होती है. अब आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि उसके घर में कुक हैं, फ्लूट गर्ल्स हैं, भाई वो सब शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आवाज तो आएगी. तो इस पर यूक्लियो सोचता है कि अब किसी को मेरे पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में पता लग गया है और वो चोरी हो गया. So he goes inside the house and finds a lot of men shouting and he starts beating all of them. It is like how he could do that. मतलब वो घर के अंदर जाता है, वो सोचता है कि मेरा पोर्ट ऑफ गोल्ड ऑलरेडी चोरी हो गया है, और वो देखता है इतने सारे आदमी लोग यहाँ पर हैं, सब चिल्ला रहे हैं, तो वो उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है. ये पढ़कर मुझे बहुत हंसी आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि वो जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनका इसमें क्या दोष था. मतलब वो सारे बेफालतू में पिट जाते हैं. He starts beating all of them without knowing the reason. So then Congrio reveals the real reason. Then Euclio goes inside and feels very happy as his pot of gold is safe and he takes that pot of gold with him under his arms. तो मतलब कॉन्ग्रियो भी क्या बेवकूफी करता है, यहाँ पर पिटने के बाद बताता है कि हम सब यहाँ पर क्यों थे. तो यूक्लियो सोचता है अच्छा दिस वाज द रीजन. तो यूक्लियो अपने घर के अंदर जाता है, अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड देखता है कि पोर्ट ऑफ गोल्ड बिल्कुल सेफ है एंड ही फील्स वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड.
एंड देन वो क्या करता है, यूक्लियो अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड अपनी आर्म्स में ही मतलब छुपा कर ले आता है बाहर। अब वो कोई मतलब इस दुविधा में जीना नहीं चाहता, वो सोचता है मैं इसे कहीं बाहर ही छुपाऊंगा। So he orders Congrio to go back inside and resume the work. So on the way, Euclio finds Megadorus and he listens to his monologue secretly. Megadorus reveals that he is against the dowry system and Euclio is delighted after listening to this. Wives with dowry are not respectable to their husbands. तो जो यूक्लियो है वो जब ये पोर्ट ऑफ गोल्ड लेकर जा रहा होता है कहीं छुपाने के लिए, तो रास्ते में उसको मिलता है मेगाडोरस। अब वो मेगाडोरस को बताता नहीं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मेगाडोरस यहाँ पर मोनोलॉग देता है। अब आई विल डिस्कस दी मोनोलॉग, सोलिलिकी, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक सेपरेट वीडियो में। मोनोलॉग भी यही होता है कि एक सिंगल पर्सन होता है, वो कोई चीज बोले जा रहा है। डायलॉग क्या होता है, दो पर्सन इंडल्ज होते हैं, डायलॉग में दो पर्सन बात करते हैं, और मोनोलॉग में सिर्फ एक सिंगल पर्सन बोलता है। सो यूक्लियो सुनता है यहाँ पर मोनोलॉग मेगाडोरस का, और यहाँ पर मेगाडोरस बोल रहा होता है कि वो डाउरी सिस्टम के, दहेज प्रथा के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि जो वाइफ्स बहुत ज्यादा डाउरी, बहुत ज्यादा दहेज लेकर आती हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल टू देयर हस्बैंड। सो यूक्लियो गोज टू मेगाडोरस एंड कंप्लेन्स दैट द प्रोविजंस सेंट बाय हिम आर नॉट सफिशिएंट। मतलब हद होती है हर चीज की। यूक्लियो यहाँ पर जब इसका डायलॉग खत्म हो जाता है ना मेगाडोरस का, तो यूक्लियो जाता है मेगाडोरस के पास और उसको कंप्लेन करता है कि तुमने जो सामान मेरे घर पर भेजा है दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो बहुत कम है। अरे भाई तुम्हारी बेटी की शादी है, वो बंदा इतना कर रहा है, बहुत है। फिर भी वो जाता है, उसको शिकायत करता है कि तुमने बहुत कम सामान भेजा है। Here Plautus gives a deep insight into the psyche of a miser. So Megadorus leaves, बेचारा क्या ही बोले, वो वहां से चला जाता है। And Euclio goes to the shrine of the good fate to hide his pot of gold. अब मेगाडोरस वहां से चला जाता है और यूक्लियो अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड लेकर जाता है श्राइन ऑफ गुड फेथ। ये कोई मंदिर तरीके की जगह है, श्राइन है। यहाँ पर यूक्लियो सोचता है कि मैं अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड छुपा दूंगा, यहाँ भाई ये किसी को नहीं मिलेगा। But Lyconides the slaves comes to know about it and after listening to Euclio's words he feels very delighted. अब जो यूक्लियो है वो मन मन में बड़बड़ा रहा होता है, मटरिंग कर रहा होता है कि वो अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड श्राइन ऑफ गुड फेथ के यहाँ पर छिपा देगा। तो जो लाइकोनिडिस का स्लेव होता है वो ये सारे यूक्लियो की बातें सुन लेता है और वो बहुत खुश होता है कि ठीक है तुम छुपाओ, मैं निकाल लाऊंगा। सो यूक्लियो इज कमिंग बैक होम, but on the way he sees a raven and consider it as a bad omen, and he goes back to the shrine to make sure the safety of the pot of gold. तो यूक्लियो श्राइन ऑफ गुड फेथ के यहाँ पर अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड छुपाकर आ जाता है, और रास्ते में आते हुए उसे दिखता है एक रेवन, मतलब एक कोआ दिखता है उसको, एक क्रो दिखता है, और वो इसको एज अ बैड ओमेन कंसीडर करता है कि मतलब कौआ दिख गया, कुछ बुरा ना हो जाए, तो मैं एक बार जाता हूँ अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड देख कर आता हूँ, वो सेफ तो है। तो वो वापस जाकर उसे देखता है एंड देयर ही फाइंड्स द स्लेव ऑफ लाइकोनिडिस एंड ही स्टार्ट्स बीटिंग हिम। तो जब कुआ दिखने के बाद ही वहां जाता है पोर्ट ऑफ गोल्ड की श्योरिटी अश्योर करने के लिए, तो ये देखता है कि भाई वहां पर तो ये स्लेव है, कोई बंदा है जो मेरा पोर्ट ऑफ गोल्ड चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्लियो उसको खूब पीटता है, खूब मारता है। देन ही लीव्स द स्लेव and decide to hide the pot in a lonely groves of Sylvanus. The slave listens to him secretly. तो ये पीट पाट देता है स्लेव को और ये स्लेव को यहाँ से भगा देता है। उसके बाद यूक्लियो डिसाइड करता है कि वो ये पोर्ट ऑफ गोल्ड छिपाएगा ग्रोव ऑफ सिल्वेनस में, मतलब जो ग्रोव ऑफ सिल्वेनस है ये एक प्लेस है, यहाँ पर ये छिपाने का डिसाइड करता है। अब जो ये स्लेव है दोबारा से सुन लेता है कि भाई ये कहाँ पर छिपाने वाला है पोर्ट ऑफ गोल्ड। सो यूक्लियो हाइड्स द पोर्ट बीनीथ द ट्री ऑन विच द स्लेव इज हाइडिंग। सो यूक्लियो उसी पेड़ के नीचे ये पोर्ट ऑफ गोल्ड छिपाता है जिसके ऊपर ऑलरेडी स्लेव छिपा हुआ था। So Lyconides has confirmed his mother about seducing Euclio's daughter. तो ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है, यूक्लियो वाला और ये स्लेव वाला, और हम सीधा नेक्स्ट सीन में एंटर करते हैं। यहाँ का सीन समझ लो आप, that Euclio hides that pot of gold and he does not know that slave was hiding there. यूक्लियो को नहीं पता है कि वहां पर स्लेव छुपकर ये सारी चीजें देख रहा है और वो पोर्ट ऑफ गोल्ड छुपाकर वहां से बाहर आ गया। So Lyconides informed his mother that he has seduced Phaedria and she is pregnant now. So at this Eunomia agrees to talk to her brother about the same. तो जब Lyconides अपनी मदर को बताता है that Phaedria is pregnant and she is having his child, then Eunomia decided कि वो अपने ब्रदर मेगाडोरस से बात करेगी इस बारे में। Then slave digs out the pot and runs as soon as no one can catch him. तो ये स्लेव बड़ा चालाक है, ये वहां पर फटाफट से पेड़ से नीचे उतरता है और गड्ढा खोदता है, पोर्ट ऑफ गोल्ड को वहां से बाहर निकालता है और फटाफट से वहां से भाग जाता है।
यूक्लियो comes there to assure the safety of the port of gold, but the port was missing. Finally ये पोर्ट खो गया है, यूक्लियो को नहीं मिलेगा इस बार, मतलब लास्ट में जाकर तो मिलेगा बट अभी नहीं मिलने वाला। तो यूक्लियो सोचता है कि मैं पोर्ट ऑफ गोल्ड छुपा कर तो आगे एक बार जाता हूँ, दोबारा देखाता हूँ। मतलब उसको इतनी एंजाइटी है, इतना टेंशन में है ना वो इस पोर्ट ऑफ गोल्ड की वजह से, इतना सस्पिशन में रहता है हर वक्त कि कोई चुरा ना ले, कोई उसको पता ना लग जाए। सो यूक्लियो जाता है वहां पर और देखता है कि पोर्ट ऑफ गोल्ड तो हो चुका है चोरी, वहां पर पोर्ट ऑफ गोल्ड नहीं है। सो यूक्लियो इज नाउ इन द अटमोस्ट पिट ऑफ सोरो, मतलब देख रहे हो प्ले राइट के वर्ड कि मतलब यूक्लियो इज नाउ इन अटमोस्ट पिट ऑफ सोरो, मतलब इतना दुख, दर्द, पीड़ा। So after hearing the lamenting of Euclio, Lyconides comes out as he thinks that Euclio has discovered about his daughter's pregnancy. तो जो यूक्लियो है ये बेचारा रोता आता है वहां पर और खूब चिल्ला रहा होता है, रोता है। तो लाइकोनिडिस हियर्स हिम, लाइकोनिडिस को इसकी आवाज जाती है। तो लाइकोनिडिस सोचता है दैट मे बी यूक्लियो हैज डिस्कवर्ड दैट हिज डॉटर इज प्रेग्नेंट, एंड देन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन लाइकोनिडिस एंड यूक्लियो व्हिच इज फुल ऑफ आयरनी, as Euclid thinks that he is talking to a stranger, while Lyconides thinks he is talking to the man whose daughter he seduced. So यहाँ पर इनकी जो conversation है, why we are calling it irony, because both of them don't know to whom they are talking to. इन्हें पता ही नहीं हम बात किससे कर रहे हैं, because Euclid सोचता है वो किसी stranger से बात कर रहा है, और जो लाइकोनिडिस है वो सोचता है कि मैं तो उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसकी बेटी को मैंने सेड्यूस करा है। सो गाइस हियर लाइकोनिडिस सेज दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिजरीज। सो यहाँ पर जो लाइकोनिडिस कहता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चीजें हुई हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो इट इज मिस इंटरप्रेटेड बाय यूक्लियो and both of them are under false interpretation of each other. Lyconides asks for forgiveness, but Euclid says that it is unacceptable. So guys, यहाँ पर जो Lyconides है, he says that I am responsible for all the miseries, as he thought that he is responsible for the pregnancy of his daughter, and that's why he is asking for forgiveness. But Euclid says that it is not acceptable because Euclid thinks that he is asking for forgiveness for the theft. When Lyconides reveals the real reason he seduced his daughter, then Euclid goes inside the house and know the reality. So when Lyconides reveals why he is asking for forgiveness, that he is asking for forgiveness because he seduced his daughter. At that point of time, Euclid thought and he goes inside the house to know the reality. And just then Lyconides' slaves comes out and tell Lyconides that he finds 4-pound jars full of gold and informs that he finds it from Euclid. And slave tells Lyconides that he would like to have freedom. So जैसे ही जो यूक्लिड है वो घर के अंदर जाता है, Lyconides' slaves comes, Lyconides' slaves appears on the stage and he tells Lyconides कि उसे 4-pound jar का जो गोल्ड पोर्ट है वो मिला है and he finds it from Euclid and he wants to have freedom. But Lyconides scolds his slave and he declines to give him freedom and the slave runs away. Lyconides slave को मना कर देता है that I will not give you freedom, और जो slave है वो pot of gold अपने साथ लेकर ही भाग जाता है. And then Lyconides tells Megadorus about it and Megadorus suggests him to give freedom to his slave and get the pot of gold back and give it back to Euclid so that Euclid will agree for your marriage with Phaedria. So Lyconides जो है वो मेगाडोरस इसके बारे में बताता है कि जो मेरा स्लेव है उसने यूक्लियो का पोर्ट ऑफ गोल्ड चोरी कर लिया है। इस पर जो मेगाडोरस है वो सजेस्ट करते हैं लाइकोनिडिस को दैट यू शुड गिव फ्रीडम टू योर स्लेव so that he will give you back the pot of gold and you should return that pot of gold to Euclid so that Euclid will agree for your marriage with Phaedria. And then Megadorus says that 3 men will be more than happy after this incident. Who are these 3 men? Euclid, Lyconides and his slave. Euclid will happy because he will get his pot of gold back. Lyconides will happy because he will get married to Phaedria, and his slave will happy because he will get freedom. So these are the 3 men who will be more than happy after this incident. So Euclid comes outside and Megadorus asks him why he is upset and Euclid blames Megadorus and लाइकोनिडिस। तो जैसे ही यूक्लियो बाहर आता है मेगाडोरस उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, और जो यूक्लियो है वो ब्लेम करता है मेगाडोरस और लाइकोनिडिस को। एंड देन कॉन्क्रियो जो कुक होता है ही अपीयर्स एंड ही आस्क यूक्लियो फॉर मनी बट यूक्लियो डिनाइज एंड मेगाडोरस पेज टू देम।
सो यूक्लियो के पास आता है कॉन्ग्री और वो पैसे मांगता है क्योंकि उन्होंने शादी की सारी प्रिपरेशन करी है. सो ही आस्क्स फॉर मनी बट यूक्लियो डिक्लाइंस एंड देन मेगाडोरस पेज. सो लाइकोनिडस जो है वो चला जाता है. ही गोज एंड ही फाइंड्स आउट हिज स्लेव and he finds that pot of gold and Megadorus gives that pot of gold to Euclio and then they talk about the theft. So जो लाइकोनिडस है वो अपने स्लेव को ढूंढ लेता है, उसको फ्रीडम दे देता है, उसके बदले उससे पोर्ट ऑफ गोल्ड वापस लेकर वो दे देते हैं उसको यूक्लियो को एंड देन दे टॉक अबाउट दिस थेफ्ट इंसिडेंट. After that Euclio agrees for the marriage and he gives that pot of gold to his daughter as a dowry. उसके बाद जो यूक्लियो है वो शादी के लिए मान जाता है फेड्रिया और लाइकोनिडस की शादी के लिए एंड ही टेल्स द ऑडियंस दैट बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट ऑफ गोल्ड ही हैड लॉस्ट हिज पीस ऑफ माइंड. इस पोर्ट ऑफ गोल्ड ने उसके जो दिमाग की शांति है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी. So Megadorus suggests that they should go inside the house and enjoy the wedding celebrations. So Megadorus बोलते हैं यूक्लियो को that they should go inside and enjoy the wedding celebration. So before going inside, Megadorus invites the audience. अब Megadorus invite करते हैं audience को, but उसके बाद देखो वो क्या कहते हैं. But unable to do so as the food is not enough and food is not that much. So he asked the audience to enjoy their meal at home. मतलब प्ले पढ़ो, सारी चीजें करो, बट खाना अपने घर खा लो बिकॉज यहाँ पर खाना ज्यादा नहीं है. So this is the end of the summary. Now we'll discuss the themes and symbols. So guys, these are the themes for this play. First theme is greed, lalach. So excessive attachment due to obsession with the wealth could lead to greed. इससे आपके अंदर लालच आ सकता है कि आपको हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा का ऑब्सेशन रहे. सो इट इज ग्रीड. इट इज वन ऑफ द थीम एज एसोसिएटेड विद यूक्लिड. देन पैरानोया ड्यू टू ऑब्सेशन विद वेल्थ, मतलब एक तरीके का पागलपन, हर वक्त वहम जो यूक्लियो को होता है. देन नेक्स्ट थीम इज इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, कि किस तरीके से जो वेल्थ है वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं खराब कर देती है. एज यूक्लियो बिकम्स सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, उसे हर किसी पर संदेह होता है. The next theme is family and marriage through relationship between Euclio and Phaedria, her father's possessiveness. Next theme is irony, misunderstanding and misinterpretation creating comedic situation between Lyconides and Euclio. कि किस तरीके से जब Lyconides और Euclio आपस में बातचीत करते हैं तो इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होता है, मिसइंटरप्रेट एक दूसरे को करते हैं, तो वो कॉमेडिक सिचुएशन क्रिएट करता है. Then social class is also a theme because it highlights the contradiction and tensions between the different social class. Next theme is love and relationship. It showcases the complexities of love ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, और ये सोसाइटल प्रेशर लव पर कहीं ना कहीं, रिलेशनशिप पर कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी में भी देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट थिंग इज योर नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, प्रायोरिटाइजिंग मटेरियल वेल्थ ओवर पर्सनल हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप. इट इज ह्यूमन टेंडेंसी दैट दे गिव मोर प्रेफरेंस टू मनी देन देयर रिलेशनशिप. हर इंसान आजकल पैसों के पीछे भाग रहा है एंड दैट्स व्हाई दे आर leaving behind their relationship, leaving behind their morals and ethics because they are prioritizing their material wealth. So this is all about the themes. And if we talk about the symbols, so first symbol is the pot of gold because it symbolizes the wealth and materialism, influence of riches and negative consequences. The next symbol is lar familiaris. It symbolizes the moral and social norms. Your third symbol is marriage. Marriage symbolizes social expectations. And there could be one more symbol which could be your raven, as it symbolizes बैड ओमेन. जब जो यूक्लियो है वो देखता है कोए को और वो चला जाता है वापस, सो ही कंसीडर इट एज अ बैड ओमेन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस समरी एनालिसिस ऑफ दिस प्ले द पोर्ट ऑफ गोल्ड. एंड आई होप आपको ये प्ले अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड स्टिल इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ ऑल द फोर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.